नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर एक बार फिर से टेक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेक टॉक्स के बारे में अब खास बताने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इतनी ईमेल्स हमारे को मिल रही हैं, इतनी क्वेरीज आपकी हमारे पास पहुंच रही हैं कि हमें ये ऐसा एहसास होता है कि शायद टेक टॉक से जो हम करने निकले थे हम अचीव करते जा रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा GISPL कंसल्टिंग का और साथ ही में डॉक्टर नवीन धाम का, जिन्होंने इस सीरीज को बनाने में हमारा साथ दिया, जिन्होंने इस सीरीज को सोचा और इसके अंदर अपने एक्सपर्ट कमेंट्स से जान डाली। डॉक्टर नवीन धाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम टेक टॉक के सीजन 3 में हैं। नमस्कार जी। तो हम डॉक्टर नवीन से समय समय पर गाइडेंस लेते रहते हैं, इस एपिसोड के दौरान भी लेंगे। और साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि क्लाउड एक्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इसको सपोर्ट कर रहा है अपनी स्पॉन्सरशिप के द्वारा, तो उसका भी हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे। क्लाउड एक्सेस पे एक यदि अपना डेटा आप सेफ रखना चाहते हैं, बिल्कुल महफूज रखना चाहते हैं, तो क्लाउड एक्सेस से बेहतरीन प्लेटफॉर्म शायद ही दुनिया में आपको कोई और मिलेगा। इसके साथ आगाज करते हैं इस एपिसोड का, और जरूरी है कि इस एपिसोड के एक्सपर्ट से आपको मैं रूबरू कराऊं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा मिस्टर सुब्रमण्य गुप्ता बोडा से, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और इस समय बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी एक्सपर्ट एडवाइस से गाइड कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। जी गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और वी थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट दैट यू chose that you agreed to be a part of this episode. I also thank you for the opportunity to share the expertise with a larger audience. राइट। सो गुप्ता जी, भले ही हमारे साथ इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं, लेकिन टेक टॉक्स क्या कर रहा है इससे बेहतरीन तरीके से वो पोस्टेड है। तो हम लोग सीधा उनसे ये पूछना चाहेंगे कि SIEM, जिसके वो एक्सपर्ट माने जाते हैं, आखिर क्या है और इसका यूज इंडस्ट्री में किस प्रकार से होता है। Simply stands for Security, Information and Event Management. What is that? SI in security incident is. In security information is all about. See, when there are network devices, an enterprise consists of several devices. Network devices, then security devices, then applications behind, and there is a databases, data stores. So it's an ecosystem of very complex in terms of the amount of devices that are connecting to this network to perform business operations. These are laptops, desktops. It used to be predominantly in this manner. But as the world evolved, if we just go back way back, the computing systems were located in one central premises and people were required to work on the central computer. This was a mainframe era. Then there is some evolution happened to a more client server system based, where the systems could be the server computing somewhere and the processing could happen somewhere else. So this required a connectivity between these two machines. That's how the evolution of network happened. With that network, now the necessity for security started to emerge, that we are giving this access to these applications to the right people and to the right devices and not outsiders. So the evolution of security devices came into play, which is called firewalls and so on. Now, as the networks grew and the technology of internet came into play around mid-90s, mid-90s, the game of accessing information changed completely. The world became flat. In that scenario, the devices no longer needed to be inside an organization premises. The devices which are accessing this information of an enterprise need not be inside, and it became omnipresent in a way. It could be accessed from home, while you are in airport, while you are from a different office location, or inside the designated office location. Now, this kind of posed several other challenges to establish the identity as well as the persona, or the person who is accessing the device is the right, and the information is the right person. So this led to a lot more technology infusion into security, which is the identities, the person, the firewall, and so on. But this all, the number of devices start to explode
in an exponential manner as the organizations grew and business grew. Now, however, it posed another challenge to the team or the IT team that is managing these devices. Now, one needs to, first and foremost, a typical IT team works on maintaining the availability of these devices. Now they needed to start looking at access and security of the devices. When these respective enterprises started to work in a borderless world, when I talked about, the internet, through internet something is being accessed, it increased what is called as a security posture or security exposure onto the internet for these enterprise devices. And that called for unwanted perpetrators or the cyber hackers wanted to access the same information for financial gains or could be for some other motives. Now we needed to understand and differentiate between what is good access and what is bad access. Now that is when we needed to identify additional devices to figure out what is going on. Now with this, it was generating what is called as every event, every access, every traffic that generates a certain small trail called log in a system. Now, one needs to understand a typical firewall, say working with say 100 people or 1,000 people would generate nearly 1 million or 10 lakh to 20 lakh log items a day. Now one needs to understand what is good and what is bad in it. It became humanly impossible. So when somebody needed to understand the good and bad access inside the network, it became mandatory that one needs to review these logs and determine what was good and what was bad. Now this load is tremendously high on a human to perform. That is when a new technology or a set of systems started to emerge called SIEMs or Security Information and Event Management. The purpose of SIEM is to visually collect this log information from various devices and analyze them in a single pane of time. The most important here is single pane of time and single pane of visibility to see and assess whether there was any bad access in that and create an alert to the operator. वंडरफुल सो मैं एक छोटे से तरीके से मैं आपको एक आसान भाषा के अंदर समझाना ये चाहूँगा। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर सुब्रमण्यम जी का कहना ये है कि जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होने लगी और इतनी जल्दी से इंफॉर्मेशन को हम लोग ब्राउज करने लगे तो कहीं ना कहीं कुछ ब्रीचेस होने लग गए, इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल होने का डर भी सताने लगा और ऐसा होने भी लगा। तो कहीं ना कहीं जरूरत हो गई कि हम देखें, मॉनिटर करें, लगातार मॉनिटर करें कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो कि हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं हमारे से बिना परमिशन के और फिर हमारे इंफॉर्मेशन का एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देते हैं। इसी को यदि हम लोग मोटे तौर पे देखें तो SIEM की कैटेगरी के अंदर तोला जाता है, जिसके अंदर हम लोग इवेंट जो होते हैं उनका एक लॉग क्रिएट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। मिस्टर सुब्रमण्या, आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं अपने दर्शकों को के बेनिफिट के लिए ये पूछना चाहता हूं आपसे कि जब हम लोग इवेंट्स की बात करते हैं तो किस तरह के ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनका लॉग एक एनालिटिक्स करने वाले को या एक एनालिसिस करने वाले आपके जैसे एक्सपर्ट को इंट्रीग करता है और अपनी तरफ आकर्षित करता है और उसका आप कहीं ना कहीं इलाज ढूंढने बैठ जाते हैं। ऐसे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और ऐसे इन इवेंट्स का इलाज क्या करते हैं आप? एक SIEM में ऐसा इवेंट्स पकड़ा जाता है। If possible, I'll try to speak in Hindi as well, though I'm not a non-native. For our audience. जैसे जैसे पकड़ा जाता है वैसे कि एक आदमी किसी आपका ईमेल मिल गया, किसी को कोई जाके आपका ईमेल सिस्टम में जाके जो पासवर्ड आप यूज करने वाला है, जो कर रहा है, वैसे मैं आपका जानकारी से मैं कुछ पासवर्ड तैयार करके आपको
पासवर्ड को मिमिक करने का कोशिश करता हूँ। तो अगर 3 बार 5 बार मैं किया, 100 बार किया, शायद मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ। आपका इंफॉर्मेशन किसी यूजर का अंदर अकाउंट में अंदर जा सकता हूँ और उसमें क्या क्या चल रहा है जानकारी ले सकता हूँ। ऐसा चीज है। अगर इस टाइम में अगर कोई SIEM टूल ये ईमेल व्यवस्था को मॉनिटर कर पा रही है, तो पता चलेगा कि अगर 3 बार गलत वाला पासवर्ड चला और 4वां बार और 5वां बार सक्सेसफुल हो गया, तो ये थोड़ा शक हो सकता है, ये आदमी सही शायद वो ओरिजिनल यूजर नहीं है। ऐसा चीज पकड़ सकता है। दिस इज कॉल्ड ए टिपिकल एक्सेस identity spoofing. Somebody uses your identity to gain access, illegitimate access into your information system. So this is a typical, it has certain behavioral aspects, maybe certain number of unsuccessful attempts within a certain period of time and a successful attempt. Right. Now, ये एक व्यवस्था एक यूज केस है। उसमें थोड़ा when we are creating a rule, we have to be cautious with couple of things. So there may be a user who is probably little older in nature, older, थोड़ा something like a senior person. He may be forgetting password or using a keyboard or a mobile device with a fatty finger can type the password wrong. Now this is where the good access and bad access. So this good access we should be able to detect clearly, and bad access we should be able to detect deterministically. Deterministically that this is a bad access and we should be able to take a remedial action or preventive action there. So this is the rules have to be defined in such manner in the SIEM system so that this can be differentiated. वंडरफुली टोल्ड। पर यहाँ पर मैं गुप्ता जी आपसे ये चीज जानना का वो एक उत्सुकता बढ़ रही है, एंजाइटी बढ़ रही है मेरी जानने की कि एक इवेंट को पढ़ पाना हर एक एक्सपर्ट के लिए संभव नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, कुछ ऐसे हैं लोग हैं जो कि बनाने में उसकी अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन एनालिटिक्स के लिए एक अलग तरीके का दिमाग चाहिए होता है, एक अलग तरीके की अप्रोच चाहिए होती है। तो कुछ बताना चाहेंगे कि एक एनालिटिकल, एक अच्छा एनालिसिस किसे हम कह सकते हैं, और ऐसे इंजीनियर्स जो हैं वो उनको कैसे पहचाने हम लोग? See, first and foremost, what I described in the last question is what is called as an indicator of compromise, or IOC in short. Now, given the history of the network development and system development, there have been several incidents in the past have been analyzed, and a compendium of IOCs have been created, or indicators of compromise have been created. Now, one SIEM system should be capable of, or an SIEM engineer should be able to understand what is the the indicator of compromise, various indicators of compromise. Depending on the nature of the system, this SIEM is supposed to monitor. For example, if it has got an internet-facing system, then the indicators of compromise are different. If it is a firewall system with an internal access driven, the indicators of compromise are different. So the selection and choice of the indicators of compromise is one of the key skill of the SIEM engineer. Now, this is the foundational skill of an SIEM engineer, basis which now is the person, whether boy or girl, he or she may be able to minimize the number of events that are raising with the reduce the number of events. See, it is like we are finding an event, a bad event is like finding a needle in a haystack. Now, can we reduce the haystack to the extent that our search areas to such an extent by putting the right IOCs in place, so your chances of finding that needle are increased tremendously. Right. Now, this is where a good engineer has to have that. Right.
हम लोगों ने ये जाना हमारे एक्सपर्ट से कि जो स्किल्स हैं एक एनालिटिकल इंजीनियर की, एक सीम इंजीनियर की, वो बड़ी टिपिकल सी हैं जी। आपको इवेंट को स्टडी भी करना है, आपको इवेंट को पढ़कर उसकी ग्रेविटी के बारे में भी जानना है कि ये कितना एक इवेंट जो है आपको डैमेज कर सकता है। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बड़े इनोसेंस के अंदर हो जाते हैं, आपने पासवर्ड ही रॉन्ग डाल दिया लेकिन आप ऑथराइज्ड हैं उस पासवर्ड को डालने के लिए। लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जहां पासवर्ड्स कोई ऐसा व्यक्ति डाल रहा है जो कि आपके सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। इसको पहचानना, इसको 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 टैकल करना और इसको एक तरीके से मिटा देना, ये सब चीज़ें जो हैं एक इंजीनियर की क्वालिटी में होनी चाहिए, एक इंजीनियर के अंदर होनी चाहिए। और ये क्वालिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर नवीन धाम का जिक्र सहसा हो उठता है, क्योंकि ये सभी क्वालिटीज़ हमने इनके अंदर देखी है। और इनकी टीम ने आज हमारे लिए एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है, तो आइए उसके थ्रू हम लोग चलते हैं। हम लोग नॉर्मली प्रोडक्ट्स के जो नाम होते हैं उनको हाइड करके चलते हैं। हमारा मकसद किसी प्रोडक्ट को यहाँ स्पॉन्सर करने का नहीं, हमारा मकसद केवल और केवल उनके फीचर्स को आप तक लेके आना है। तो आइए देखते हैं कि कोई SIEM प्रोडक्ट जो है वो कैसा दिखता है और एक इंजीनियर उसको कैसे रीड करता है। सो वी हैव अ प्रेजेंटेशन है सर। तो सर हम लोग यहाँ पे बड़े सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, जैसे कि सिक्योरिटी एनालिटिक्स और आपका लॉग डेटा एनालिसिस। प्लीज थोड़ा सा कुछ लाइट्स डालिए इनके ऊपर। श्योर श्योर। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला है सिक्योरिटी एनालिटिक्स। अब राइट हैंड साइड में उसकी पिक्चर भी आपको दिख रही होगी कि सिक्योरिटी एनालिटिक्स में इवेंट्स जो भी जैसे कि गुप्ता जी ने बताया कि कोई गलत पासवर्ड डाल दे तो वो एक सिक्योरिटी इवेंट हो गया। तो उस इवेंट को जो है एनालाइज करने के लिए ये फीचर जो है सिक्योरिटी एनालिटिक्स फीचर है, जो कि एनालाइज करता है कि हाँ एक्चुअल में ये गलत पासवर्ड 10 बार डल गया, 5 बार डल गया, तो ये दिस इज एन इवेंट। और कोई फायरवॉल में घुसना चाह रहा है बार बार या अटैक करना चाह रहा है, दिस इज एन इवेंट। तो वो सिक्योरिटी एनालिटिक्स फीचर इसी को दर्शाता है। तो ये जो राइट में हम स्क्रीन देख रहे हैं, एक एक्सपर्ट को एनालिटिक्स जो कर रहे हैं इस समय, उनको ऐसी स्क्रीन दिखती होगी वहाँ? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी स्क्रीन। अच्छा, ओके। और इसके बाद अगर हम फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग पे चलें तो इसका क्या मतलब है, उसके क्या अहमियत है? फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग मीन्स आपकी कोई फाइल है, अगर उस फाइल में कोई चेंजेस हो रहे हैं, कोई आपकी बहुत क्रूशियल फाइल है जिसमें कि जिसको आप मॉनिटर करना चाहते हैं कि इसमें कोई चेंजेस ना करें, और अगर उसमें जैसे ही चेंज हुआ तो आप उसकी इंटीग्रिटी में चेंज हुआ, उसके अंदर कुछ चेंज हुआ, तो आपको एकदम पता लग जाएगा कि इस फाइल में इस यूजर ने चेंज किया है। जी, तो ये इस समय हमारे को ये ग्राफ्स क्या समझाते हैं? ग्राफ यही समझा रहे हैं कि हाँ कि कितने लोगों ने उसको मॉडिफाई किया। ऊपर आप देखेंगे मॉडिफाइड लिखा है, नीचे एडिड लिखा है जी, और क्रिएटेड। तो किसने हाँ इस कलर से पता हो जाएगा। जो इसमें मजेंटा कलर है वो बता रहा है कि किसी ने मॉडिफाई किया है उसे। जी जी, ठीक है। उससे नीचे वाला बता रहा है कि किसी ने इसमें कुछ ऐड किया है, राइट। और नीचे वाला बता रहा है कि किसी ने नई फाइल क्रिएट की है। तो इस जो ग्राफ है इससे यही पता लग रहा है कि अलग अलग काम किसी ने क्या क्या किए हैं। जी। आप हम एक और भी चीज देख रहे हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स। मतलब ये आपकी अलर्टनेस को शो करता है कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स मीन्स जैसे इंसिडेंट समझ लो किसी ने अटैक किया, वो एक इंसिडेंट बन गया आपका। अब वो इंसिडेंट में उसका रिस्पॉन्स कैसे किया गया, ये उसको दर्शाता है कि हाँ कैसे उस पर रिस्पॉन्स दिया गया। रिस्पॉन्स को मैं अपने एक्सपर्ट से समझना चाहूंगा और डिटेल के अंदर। सर, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्स, what kind of activities do take place behind the scenes? Typically, okay, let's talk about a similar thing. Okay, we talked about a user trying to connect and log in. Okay, right. So let's talk a typical Windows network wherein a user is trying to log in and a user gets added to what is called as a privilege escalation. Right. See. A typical event ID that gets generated in a Windows network, Windows system, whenever there is a change of active privilege happen to a user, I think 4672 is an event ID that gets generated. If SIEM is configured to track this event ID on a Windows system, it will create an alert that it has created what we call as a
Yeah, it's created a user with this a privilege has been escalated, or a user had been created added to a security group. Then it will create, think 4735. I think there's a different set of event IDs one needs to monitor. Those event IDs are configured, and these are standard, which have to be added into the SIEM solution. Now, when such an alert comes, what we call as the first step is called triaging. It is as simple as identifying the impact of the incident. Is it is it a simple user, or is it a privileged user that is getting compromised? The impact of on the system and network is very high when it is done for a privileged user. A privileged user is someone who has administrative access to modify, change certain things in the system network or systems capabilities, or I can bring system down or add a new program. Anything can be done with a privileged account. A normal account may be able to use only an application. Now, depending on the triaging is what we call as a first step of incident response, right? Identify what is the incident, what is the impact it is creating, what is the adverse effect, and what is the extent of the damage or the impact it can create. Based on that, your response plan needs to be defined. For example, in case of a user getting a higher privilege and you are able to detect within time, first go and disable the user and disable that account or remove the privileges. It is as simple as the response plan can be predetermined if this incidents are identified in advance. As I was mentioning, the indicators of compromise, for every indicator of compromise, you can create what is called as an incident response plan through a playbook. A playbook is something which can be trained on and created in advance and used in the situation of an incident. A good playbook is essential for incident response. मैं डॉक्टर धाम देख रहा था आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर एक क्लाउड सिक्योरिटी, आजकल तो दुनिया क्लाउड पे जा रही है, तो उसका भी एक फीचर था, तो उसके बारे में कुछ समझना चाहूंगा कि ये क्या है और इसको कैसे रीड या एनालाइज किया जाता है। इसमें क्या है कि हम क्लाउड को इसमें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस सिम में, जैसे कि क्लाउड एक्सेस का क्लाउड हो सकता है, AWS का हो सकता है, एज्योर का हो सकता है। तो हम जब उसको इसमें कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो वो उस क्लाउड में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं या इवेंट्स आ रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी को ये मॉनिटर करना शुरू कर देता है। तो जैसे क्लाउड की तो अपनी कहते हैं सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, उसके अंदर काफी इनबिल्ट रहते हैं, तो उसके बाद भी कुछ इवेंट्स ऐसे आप एंटिसिपेट करते हैं कि उसमें होते होंगे कि जिनके ऊपर एक एक्शन लेना जरूरी हो जाता है, राइट? ओके। जैसे डॉक्टर साहब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे रेगुलेटरी कंप्लायंस भी एक चीज लिखी हुई है। कंप्लायंसेस को हम लोग यहाँ पर एक इवेंट की तरह कैसे रीड करते हैं, क्या मतलब रहता है इसका? यहाँ पर मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस जैसे कि साइबर सिक्योरिटी की जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, जैसे कि ISO 27001 हो गया, PCI-DSS हो गया, ये सारे कंप्लायंसेस हैं इसके जिसको यूज़ करके हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लायंस सेटअप करते हैं या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को अचीव करते हैं। तो ये इस SIM में हमने उन कंप्लायंसेस को लेके उसके रूल सेट्स बनाए हुए हैं। अगर कोई भी ऐसा इवेंट मिलता है जो उसके अगेंस्ट जा रहा है तो वो इसमें कैप्चर हो जाता है। तो हमें फिर उस कंप्लायंस का जब ऑडिट होता है तो उसमें उसको हमें मेंटेन करना इजी रहता है कि ये इस कंप्लायंस के अगेंस्ट जा रहा है, इसको ठीक कर दो। तो वो जब ऑडिट होता है तो वो ऑडिट क्लियर हो जाता है, राइट? तो वो हम उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम उसके साथ चल रहे हैं यूजिंग दिस SIM। ओके, ऑलराइट। सो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा जिसमें एक्सपर्ट्स भी हैं IT सिक्योरिटीज़ के और साइबर सिक्योरिटीज़ के, प्लस जहाँ पर बिजनेसमैन भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मैं ये कहना चाहूँगा कि थ्रेट्स लगातार आपकी तरफ पहुँच रहे हैं, आपके सिस्टम को लगातार पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने समझाया कि ज़्यादातर उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो किया जाता है जहाँ पे ट्रांजैक्शनल जो हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं ज़्यादा होती हैं और जिनकी कीमत जो है एक इंट्रूडर को जो है जल्दी से मिल सके। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत वल्नरेबल रहती हैं अटैक्स के लिए।
SIEM जो है हमारी आंख है, नाक है, कान है और हमारे सभी सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे को आने वाले थ्रेट से आगाह करने के लिए बने होते हैं। तो ये भी उन्हीं तरह से काम करते हैं। हम लोग ये सब चीजें आप तक इसलिए पहुंचाते हैं दोस्तों, बिकॉज आने वाली दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन का ट्रैवल जो है वो और ज्यादा फास्ट होने वाला है। आपको भी उतना ही अलर्ट रहना होगा। तो हमारे को ऐसे अलर्ट रखने के लिए खासतौर पे ये प्रोग्राम तो है ही, लेकिन साथ ही में हमारे साथ मिस्टर सुब्रमण्या गुप्ता जैसे एक्सपर्ट्स भी ज्वाइन होते रहते हैं आपको इन चीज़ों से आगाह करने के लिए। साथ ही में डॉक्टर नवीन धाम हमारे साथ रहते हैं एज एन एक्सपर्ट। मैं अपने एक्सपर्ट ऑन द पैनल जो है उनका नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, आप जरूर उनसे बात कर सकते हैं, अपने थ्रेट्स के बारे में, अपनी कंपनीज के बारे में और ज्यादा अच्छे से उनसे समझ सकते हैं। डॉक्टर नवीन धाम हमारे साथ 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं जी, उनकी टीम लगातार अलर्ट पे रहती है और डॉक्टर नवीन धाम हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर आपके फोन्स लेने के लिए भी सदा अलर्ट रहते हैं। उनके नंबर्स, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। यदि आप किसी सिक्योर प्लेटफॉर्म पे अपने डेटा को होस्ट करना चाहते हैं तो क्लाउड एक्सेस जैसा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। समय समय पर हम उनके नंबर्स यहाँ फ्लैश करते रहते हैं, आज भी मैं वही नंबर्स यहाँ पर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए और अपने आप को सिक्योर रखिए। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड के अंदर और एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।